Magnetic force on a current carrying wire. What is electric current? We know that electric current is basically collection of moving charges. Now if we place a wire for this certain experiment, let's assume we have placed a piece of wire, and the piece of wire is connected with some source of current, and this piece of wire is placed inside a region where there is a constant magnetic field, and the direction of magnetic field is shown in the diagram with the help of these dots. We have already studied the conventions of the representation of the magnetic field, direction of the magnetic field. There were three conventions. One is represented with one was arrowheads, the second one was dots, and the third one was crosses. This now moving on towards what's going on in this experiment and what were the observations made. Now for this experimental setup, the figure A represents the experimental setup, experimental arrangement where current is equal to 0. No current passes through the wire. As there are no moving charges inside the magnetic field, it is clear, as there are no moving charges inside the wire, so there will be no force of attraction or no force of repulsion provided by the magnetic field B. Now moving on towards the diagram B, what is in diagram B? We have started a current. That current flows in the direction from downwards to upward direction. We can say it is moving in the upward direction. So the current is moving in the upward direction. Then what will happen when the current passes through the region of magnetic field? It was observed that it is an assumption that the magnetic field exerts a sideways force on the moving charges. Now we have observed from the experiment that the sideways force exerted on the moving charges will cause the charges to leave its original place, which was अगर ये चार्जेस जो थे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में पहुँचे हैं तो दे वर अप्लाइड विद अ फोर्स दैट वाज अ साइडवेज फोर्स. तो साइडवेज फोर्स होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो चार्ज पार्टिकल्स जिस वायर के अंदर हैं, द चार्ज पार्टिकल्स are not free to move anywhere. वो किसी जगह जा नहीं सकते. They are bound to they are restrained to stay inside the wire. तो जब ये रिस्ट्रेंड है वायर के अंदर ही रहने पर, तो ये वायर से निकल कर तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन दे विल अप्लाई the force exerted by the magnetic field they will transfer that force to the wire, और as a result your wire tends to bend. आपकी जो वायर है वो क्या करेगी, वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और डिफ्लेक्ट करके वो आपके पास एक साइड पर चली गई है अगर हम सिर्फ फिगर ए को कंसिडर करते हैं. नाउ कंसिडरिंग द फिगर बी को हम कंसिडर कर रहे थे, तो आपके पास एक साइड पर मूव कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी. नाउ कंसिडरिंग फिगर सी. अब फिगर सी में क्या डिफरेंस है, फिगर सी में जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है. अब करंट जो है वो फ्रॉम अप टू डाउन मूव कर रहा है, टू डाउनवर्ड्स करंट अगर फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो हम बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास डेफिनेटली क्या होगा, साइडवेज फोर्स लगेगी, और साइडवेज फोर्स में आपके पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो वायर को मजबूर करेंगे कि वो एक साइड पर डिफ्लेक्ट हो जाए, और जब वो एक साइड पर डिफ्लेक्ट हो रही है तो उसकी कुछ शेप इस तरह से बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि हमारे पास डायग्राम नंबर सी में दिखाया गया है.
इसमें। नाउ अब यहाँ पर हुआ क्या, इनसाइड द वायर क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास ये शेप अटेन हुई है, उसके लिए हम लोग अपनी वायर के अंदर की तरफ अंदर देखेंगे कि वायर के अंदर क्या हो रहा है। फॉर दैट हम लोगों ने यहाँ पर वायर का इनसाइड व्यू जो है वो लेना है। Before analyzing the inside view of the wire, let's write down some of the conditions in which the experiment is being performed. The first condition for that, we are considering the current is the conventional current. Keep in mind कि हमारी डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज़ थी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो यूनिफॉर्म थी। Okay, let's remember the concept of drift velocity. What is the drift velocity? Drift velocity is the maximum achievable velocity by any charged particle present in the electric field. तो यहाँ पर हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव द वेलोसिटी, और ये बात जहन में रखिएगा, द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कन्वेंशनल करंट। तो हमारे पास जो डायरेक्शन, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे मालूम होगी? दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि अगर आपको करंट की डायरेक्शन मालूम है, करंट इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी आपके पास? इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होगी, एज द करंट इज़ द कन्वेंशनल करंट. Now we know the charge Q that will be equal to minus E. Basically minus E क्यों आया? क्योंकि हमारे पास ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये हमारे पास चार्ज जो है वो एक अदद इलेक्ट्रॉन है। अब हमने ऑलरेडी अपनी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो वैल्यू हमारे पास थी FB इज़ इक्वल टू QV क्रॉस B। तो यहाँ पर Q की जगह आ जाएगा आपका माइनस E, और V की जगह आ जाएगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज द पार्टिकल इज़ इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन, लेट वी आर कंसिडरिंग फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है आपके पास वो आ रही है FB इज इक्वल टू माइनस VD क्रॉस B। नाउ हमें ये भी मालूम है कि हमारे पास ये वायर जो है, इस वायर के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा। लेट्स से कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल N। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है वो हमारे तमाम N चार्जेस के ऊपर लग रही होगी। तो फोर्स जो है वो इक्वेशन आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और उस इक्वेशन में आपके पास एक नीच टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी, एंड दैट इज़ N। तो फोर्स बराबर है -NEVD क्रॉस B के। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स, हमारे पास हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास नंबर डेंसिटी क्या होती है। वी आर फेमिलियर विद द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एनी सर्टेन वॉल्यूम और इन एनी सर्टेन एरिया। अगर किसी सर्टेन एरिया के अंदर जो मौजूद नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं वो आपकी नंबर डेंसिटी कहलाती है। तो इफ़ n इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसको अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी लिखना चाहते हैं तो वो नंबर डेंसिटी की फॉर्म में आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू स्मॉल NaL। अब आपके पास जो इक्वेशन है, हमारी जो इक्वेशन हमने अभी मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर के लिए निकाली है, उसकी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और कैपिटल N की जगह हम इसको रिप्लेस कर लेंगे स्मॉल NaL के साथ, और बाकी आपके पास वही टर्म्स रहेंगी। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, अपने जहन में रखनी है, वो है हमारी करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर ये आपके सामने लिखा गया है। करंट डेंसिटी को यूजुअली J से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट माइट बी अ स्मॉल J और अ कैपिटल J।
तो यहाँ पर J जो है आपके पास आ रहा है बराबर I पर यूनिट एरिया के लिए। I पर यूनिट एरिया यानी करंट पर यूनिट एरिया के बराबर है आपके पास। तो यहाँ से करंट डेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ रही है I/A। अगर हम I की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी निकालना चाहते हो तो दैट विल बी इक्वल टू J इंटू एरिया। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब एक चीज़, एक कैलकुलेशन मैथमेटिकल की गई थी कुछ देर पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ J इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। J की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो वो किस तरह, करंट डेंसिटी की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, उसके लिए आपके पास रिलेशन था। दैट रिलेशन, इसकी डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस के स्कोप में नहीं है। तो आपके पास सिंपल क्या है, J इज़ इक्वल टू NE इंटू VD। ये आपने याद कर लेना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है। अब यहाँ से ये जो आपकी नीचे वाली इक्वेशन है, यहाँ से हम J की वैल्यू को उठाएंगे और अपनी इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो जब आप इसको इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा J की जगह आपके पास आ जाएगा NE/VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एरिया। अब ये जो I की वैल्यू है, ये I की वैल्यू हम अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो N है, E है, A है, ये N आपके पास, ये आपका A, ये E और ये आपका VD, इन सब की जगह हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, आपके पास ये फॉर्म बन गई। आप इसको रिप्लेस करके I लिख सकते हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर एक अदद क्रॉस प्रोडक्ट ही जनरेटेड रखना है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है हम इसको यहाँ पर किस तरह से ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो वेक्टर आपके पास क्या है, उसको वेक्टर को नाम दिया है उसने मैग्नीट्यूड ऑफ। हम लोगों के पास उस वेक्टर को L वेक्टर कह रहे हैं। और ये वेक्टर क्या है, ये बेसिकली वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो कि आपके पास अक्रॉस, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट के, कि आपके पास जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की उसके बराबर है। और ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इसकी जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है। तो L वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमें नोन है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर के बराबर है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास करंट की डायरेक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको रिप्लेस करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर, ये वाली इस सारे को अगर हम लोग इसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह अगर हम लोग VD ले रहे थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ले रहे थे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को रिप्लेस किया जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ के साथ। लेकिन चूंकि ये वाली जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में VD इज़ अ स्केलर, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वेक्टर है, तो हम वेक्टर को वेक्टर से ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ये L वेक्टर की जगह L की जगह L वेक्टर पुट करेंगे और V की जगह L की जगह L वेक्टर पुट कर देंगे। अब ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास इस इक्वेशन में ये माइनस साइन जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, सिंस बोथ द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो ये माइनस का साइन आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब आपने कैलकुलेशन, अब आपने रिप्लेस कर, नाउ यू कैन रिप्लेस द वेक्टर this term. Okay, let's clear all this. Now we can replace this whole term with this term. ठीक है जी। तो आपके पास ये इक्वेशन जो बन जाएगी, दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ योर इक्वेशन। और इस इक्वेशन का अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, दिस इक्वेशन बेसिकली प्रोवाइड्स the value of magnetic force on the current carrying wire. It also provides the direction of the magnetic force on the current carrying wire.
Now if we only want to calculate the magnitude of the force, तो magnitude of the force के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी. इन दिस इक्वेशन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स. मैग्नेटिक फील्ड इज द कांस्टेंट, L is the constant, and you can put up the value of the sine theta, the angle between your magnetic field and length. तो उस सूरत में फिर आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा जी, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इस एंगल की दो कंडीशंस हो सकती हैं. ये जो थीटा है, फाई है, दिस फाई कैन हैव टू पॉसिबल वैल्यूज़. हम लोग जो ज़्यादातर कैलकुलेट करते हैं, वन इज़ द वैल्यू फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द सेकेंड इज़ द वैल्यू फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज. अगर हमारे पास जो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है FB, उसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी. और अगर हम लोग बात करते हैं थीटा जो है वो फाई जो है वो 90 के बराबर है, तो आपकी ये वाली नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी जिसमें साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है. और जब साइन 90 1 होगा तो आपके पास ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो निकल आ जाएगा IL B के बराबर आ जाएगा. नाउ अगर आपके पास क्या हो, ये तो हो गई हमारी डिस्कशन फॉर द स्ट्रेट वायर. अगर आपके पास एक वायर ऐसी वायर है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रही है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा, उसको हमने अभी तक एनालाइज कर लिया. ठीक है जी. अब कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, एक अदद ऐसी वायर मौजूद है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि वो थोड़ी सी कर्व्ड लाइन है. माइट बी पॉसिबल कि वो वायर जो है वो बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो. तो अगर कर्व्ड वायर है आपके पास, तो कर्व्ड वायर के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी कर्व्ड वायर को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, इतने छोटे सेक्शंस में कि ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट वायर रहे. और हर वायर के अक्रॉस जो है आप अपनी फोर्स की वैल्यू, हर सेक्शन के अक्रॉस अपनी फोर्स की वैल्यू निकालेंगे. और हर सेक्शन के अक्रॉस अपनी फोर्स की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको होल वायर के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे. तो एक स्मॉलर सेक्शन ऑफ द वायर के लिए वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर ये लिखा गया है, DFB इज इक्वल टू I इन DL क्रॉस B.